Hello viewers, this is Professor Dr. Wasim I Khan from Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. I welcome all the viewers to the lecture series of family law. So, from today we will discuss inheritance and succession under Christian. It may also be called as other than Parsis. So, what will be the procedure of succession amongst the Christian and other than Parsi we will discuss under this particular video. So, we will discuss the entire law of succession relating to a Christian in 4 parts. So, I request to all the viewers to, if you want to understand the entire concept of succession amongst the Christian, please watch all these 4 lectures. So, this is the first part we will discuss today. So, let us proceed towards our topic. So, rule of succession in case of Christian other than Parsi. So, what will be the rule of succession? So, section 32 of Indian Succession Act. So, rule of succession amongst the Christian is provided in the Indian Succession Act 1925. So, Indian Succession Act 1925 में ये बताया हुआ है Christian succession. So, the chapter starts from section 32 which deals with devolution of such property. In what manner the property of any intestate will be transferred among his legal heir. किस तरीके से अपने लीगल हेयर्स में प्रॉपर्टी जाएगी किसी इंटेस्टेट की, ये सेक्शन 32 कहता है. सो द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटेस्टेट डिवॉल्व्स अपॉन द वाइफ और हस्बैंड or upon those who are of a kindred of a deceased in order and according to the rules hereinafter contained in this chapter. So whenever if any Christian dies, his property will devolve upon his wife if he is a male, her husband if she is a female, and upon those who are kindred of the deceased. Kindred means blood relatives of the deceased, in order and according to the rules hereinafter contained in this chapter. तो सेक्शन 32 में सिर्फ इतना बताया हुआ है कि अगर किसी क्रिश्चियन की डेथ होती है इंटेस्टेट विदाउट प्रिपेयरिंग अ विल, तो उसकी प्रॉपर्टी एक तो वाइफ को जाएगी अगर हस्बैंड की डेथ होती है, तो अगर वाइफ की डेथ होती है तो उसके हस्बैंड को जाएगी, और उसके ब्लड रिलेटिव्स को, किंड्रेड को प्रॉपर्टी जाएगी. वो कैसे जाएगी? अकॉर्डिंग टू द रूल्स हियरइनआफ्टर कंटेन्ड इन दिस चैप्टर. तो किस तरीके से जाएगी वो आगे के सेक्शन में इस चैप्टर में बताया हुआ है. सो वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 33. सो वेयर इंटेस्टेड हैज लेफ्ट विडो and lineal descendants, or widow and kindred only, or widow and no kindred. So in section 33 the provision of succession is mentioned in case where intestate has left widow and lineal descendant. Suppose if the intestate left widow and also is lineal descendant, means son and daughter and their children, or widow and kindred only, means widow and kindred other than lineal descendant, and विडो और नो किंड्रेड. सेक्शन 33 क्या बोलता है कि 3 सिचुएशन बताता है. एक सिचुएशन ये कि इंटेस्टेट की डेथ हुई, उसने विडो उसकी है और उसके बच्चे हैं, एक सिचुएशन ये हो गई, तो सक्सेशन कैसा होगा. दूसरी सिचुएशन ये बताता है कि विडो है बट बच्चे नहीं है बल्कि दूसरे किंड्रेड, फॉर एग्जांपल दूसरे रिलेटिव्स, फादर मदर वट एवर इट मे बी, ये है, तो कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा. और तीसरा ये बताता है कि ना तो लीनियल डिसेंडेंट है ना तो किंड्रेड है, डिसेंडेंट भी नहीं है असेंडेंट भी नहीं है, सिर्फ विडो है, तो प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी ये सेक्शन 33 मेंशन करता है. सो वेयर द इंटेस्टेड हैज लेफ्ट अ विडो, अगर इंटेस्टेड की विडो है एंड लेफ्ट एनी लीनियल डिसेंडेंट, 1/3 टू विडो एंड द रिमेनिंग 2/3 टू हिज लीनियल डिसेंडेंट अकॉर्डिंग टू द रूल्स हियरइनआफ्टर कंटेन्ड. So whenever the intestate dies, leaving behind a widow, and along with the widow, if there are a lineal descendant, then 1/3 of his property will go to a widow and remaining 2/3 will go to the lineal descendant. तो पहली सिचुएशन क्या है? इंटेस्टेट की डेथ हुई, क्रिश्चियन की डेथ हुई, और डेथ होने के बाद उसकी विडो है और उसके बच्चे भी है, तो उसके विडो को जाएगा 1/3 और जो रिमेनिंग 2/3 है उसके लीनियल डिसेंडेंट में जाएगा. अब उसके लीनियल डिसेंडेंट में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा ये आगे के सेक्शंस में बताया हुआ है. इसमें सिर्फ क्या बताया हुआ है? विडो को 1/3 और लीनियल डिसेंडेंट को
2/3 जाएगा। देन इफ he has left no lineal descendant but person kindred to him, half share to widow and remaining half to kindred in the order and according to the rules hereinafter mentioned. Suppose if the intestate dies leaving behind no lineal descendant, if there is no lineal descendant but he left a widow and kindred, उसने क्या किया, विडो है उसकी और kindred है, मतलब फादर मदर वट एवर इट मे बी, दूसरे ब्लड रिलेटिव्स ये है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हाफ प्रॉपर्टी जाएगी विडो को और रिमेनिंग हाफ जाएगी किंड्रेड को, है ना। विडो और लीनियल डिसेंडेंट रहे तो विडो को जा रही है 1/3, लीनियल डिसेंडेंट को जा रहा है बचा हुआ 2/3। अगर लीनियल डिसेंडेंट नहीं है, विडो और किंड्रेड है, तो विडो को जाएगी हाफ और किंड्रेड को जाएगी हाफ बचेगी। बट इफ ही हैज लेफ्ट नो ऑफ किंड्रेड टू हिम, द होल प्रॉपर्टी शैल बिलोंग टू हिज विडो। But suppose if the intestate dies leaving behind no lineal descendant, no kindred, and only he left a widow, then entire property will go to a widow. अब क्या तीसरी सिचुएशन क्या है, इंटेस्टेट की डेथ हुई, ना तो लीनियल डिसेंडेंट है ना तो किंड्रेड है, सिर्फ विडो है, तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी विडो को जाएगी। अब ये सेक्शन 33 मेंशन करता है। अब नाउ सेक्शन 34 वी विल डिस्कस। सेक्शन 34 where intestate has left no widow and where he has left no kindred। अब सेक्शन 34 ये बोलता है कि इंटेस्टेट को ना तो विडो है ना तो कोई रिलेटिव्स है, ब्लड रिलेटिव्स कोई भी नहीं है, तो सेक्शन 34 क्या कहता है फिर, इफ ही हैज लेफ्ट नन हु आर किंड्रेड टू हिम इट शैल गो टू द गवर्नमेंट। मतलब इंटेस्टेट की डेथ होती है, ना तो उसकी विडो है ना तो उसके ब्लड रिलेटिव्स है, कोई भी नहीं है, तो उस सिचुएशन में प्रॉपर्टी जाती है गवर्नमेंट को, सेक्शन 34 के हिसाब से। सेक्शन 35 राइट्स ऑफ विडोवर। हमने सेक्शन 33 में देखा विडो का शेयर कितना है, लीनियल डिसेंडेंट के साथ अगर विडो है तो विडो को 1/3, 2/3 लीनियल डिसेंडेंट को, विडो के साथ अगर डिस्टेंट किंड्रेड है किंड्रेड है तो विडो को हाफ, किंड्रेड को हाफ। अगर विडो अकेली है, लीनियल डिसेंडेंट भी नहीं है, किंड्रेड भी नहीं है, तो पूरी प्रॉपर्टी विडो को। ये विडो का शेयर हमने डिस्कस किया सेक्शन 33 में। अब सेक्शन 35 ये बोलता है राइट्स ऑफ विडोवर, मतलब इफ वाइफ डाइज हिज हस्बैंड विल बी कॉल्ड विडोवर। अगर वाइफ की डेथ होती है तो उसके हस्बैंड को हम विडोवर कहेंगे। अभी विडोवर का राइट क्या है सेक्शन 35 मेंशन करता है। अब सेक्शन 35 क्या कहता है, अ हस्बैंड सर्वाइविंग हिज वाइफ हैज द सेम राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी इफ शी डाइज इंटेस्टेड एज अ विडो हैज इन रिस्पेक्ट ऑफ हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी इफ ही डाइज इंटेस्टेड। तो यहां पर सिंपल बताए वाला है कि अगर हस्बैंड की डेथ हुई तो उसके विडो को जो राइट है, सेम राइट अगर वाइफ की डेथ होती है तो उसके विडोवर को रहेंगे। फॉर एग्जांपल अब वाइफ की डेथ हो गई, उसका हस्बैंड जिंदा है, वो विडोवर कहलाएगा। अब विडोवर के साथ अगर लीनियल डिसेंडेंट है तो विडोवर को 1/3, लीनियल डिसेंडेंट को 2/3। विडोवर के साथ अगर किंड्रेड है, लीनियल डिसेंडेंट नहीं है, तो हाफ विडोवर को और किंड्रेड को हाफ। अगर ना तो किंड्रेड है ना तो लीनियल डिसेंडेंट है तो पूरी प्रॉपर्टी विडोवर को। तो ये जो विडो को राइट है सेम राइट विडोवर को है अगर वाइफ की डेथ होती है तो सेक्शन 35 के हिसाब से। तो ये था प्रोविजन फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने डिस्कस किया ये 4 सेक्शन 32, 3, 4, 5 ये 4 सेक्शन हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि विडो के साथ अगर लीनियल डिसेंडेंट है तो विडो को हम देंगे 1/3, 2/3 हम लीनियल डिसेंडेंट को देंगे। तो लीनियल डिसेंडेंट को 2/3 किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो 2/3 जो लीनियल डिसेंडेंट का है वो किस हिसाब से लीनियल डिसेंडेंट में 2/3 डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम फास्ट रिकॉल करते हैं हमने इस लेक्चर में क्या डिस्कस किया। सेक्शन 32 में ये डिस्कस किया हमने कि अगर किसी क्रिश्चियन की इंटेस्टेड डेथ होती है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके वाइफ या हस्बैंड या उसके ब्लड रिलेटिव्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, सेक्शन 33 ये बोलता है कि विडो के साथ अगर लीनियल डिसेंडेंट है तो विडो को 1/3, लीनियल डिसेंडेंट को 2/3। अगर विडो के साथ किंड्रेड है, लीनियल डिसेंडेंट नहीं है, तो विडो को हाफ, किंड्रेड को हाफ। अगर विडो अकेली है, ना तो किंड्रेड है ना तो लीनियल डिसेंडेंट है, तो पूरी प्रॉपर्टी विडो को।
अगर सेक्शन 34 ये बोलता है कि इंटेस्टेट की डेथ हुई, ना तो ब्लड रिलेटिव्स है ना तो विडो है, तो वो प्रॉपर्टी जाएगी गवर्नमेंट को। 35 ये कहता है कि जो राइट विडो को है हस्बैंड की डेथ होने के बाद, सेम राइट विडोवर को है वाइफ की डेथ होने के बाद। So these are the first part, this is the first part we have discussed relating to a Christian succession. If you want to understand the entire topic, remain with us for the next lecture also. We will discuss the entire topic in 4 parts. 4 पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं. So I hope you understand this first part of Christian succession. If you understand, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.